Very good morning, students. So we have already discussed the chapter of Robinson Crusoe discards a footprint. We have discussed the chapter and we came across the new words and we have written the 3 question answers. So from question number 4 now, choose the correct answer. First one, Robinson ran back to his home as fast he could because Robinson अपनी घर वापस गया था बट वो रन करते हुए गया था. क्यों? बिकॉज ही वॉज अफ्राइड, वो बहुत डरा हुआ था है. क्यों? ही सॉ द फुटप्रिंट, दैट्स वाई ही वॉज सो स्कैर्ड एंड ही रन बैक टू हिज होम. He could not sleep because why he can't sleep? Because he thought savages had come from the mainland. इसने ये सोचा कि वाइल्ड पीपल शायद mainland से इस आइलैंड में एंटर कर लिए हैं. That's why he got scared and he can't sleep. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? उसको क्यों लगा कि ये footprint उसका नहीं है? Because he had not come to this part of the beach in a long time. बहुत दिनों से वो बीच की इस पर्टिकुलर पार्ट में वो आया ही नहीं था, तो उधर वो कैसा ये उसकी footprint आ सकता है. Fourth one, where was Robinson Crusoe? Yes, he met with a ship accident and he used to live alone on an island. वो बोट में, टाउन में, एरोप्लेन में नहीं है. वो कहाँ रहता था? He lived alone on an island, एक आइलैंड पे. ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स टॉक. How would you feel if you saw unknown footprints outside your friend door? So children, ये let's talk की जो पोर्शन होती है ना बेटा, ये हमेशा आप एक रफ कॉपी में लिखिए. It improves your writing skills, creative and imaginative skills. Okay? So अगर if you see any of footprints outside your friend door, how will you feel? आप कैसा फील करोगी, है ना? Next, second one, if you are alone at home and suddenly someone knocked at your door, what would you do? ये हमेशा ध्यान रखनी है. अगर बच्चे कभी घर पे अकेले हैं और आपके घर पे कोई आपकी डोर नॉक किया, then how will you react? आपको क्या करनी चाहिए? You should not open the door at once. कभी पूरा डोर खोलिए मत. You have to peep out, मतलब कोई भी विंडो या कोई डोर की होल की थ्रू बाहर देखिए, झाँक के झुक के देखिए कि कौन है. If it is an unknown person, then don't open the door for him, or he or she is a known person, then ask the purpose why they were there at that time and see them that your parents are not there. So ऐसा आप खुद सोचिए कि आप घर पे अकेले हो तो आपके घर कोई आएंगे तो what will you do, है ना? यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू टॉक दिस. बेटा ये NCERT बुक्स में आपको चैप्टर पढ़ लिया, 3-4 क्वेश्चन आंसर्स रट लिया, काम हो गया, ऐसा नहीं. दीज एक्सरसाइजेस आर वेरी गुड एंड ये क्या आपकी सेल्फ असेसमेंट स्किल्स, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे. सो डेफिनेटली आप ये ट्राई करिए. नेक्स्ट, लेट्स राइट. द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड. राइट them in an order. One is done for you. Yes, we know that jumbled sentences. So all these sentences were from your chapter itself. So sentence को read करिए. They are jumbled. The words are jumbled. You have to arrange them in a proper order. Alone was not Robinson an island on. Robinson was not alone on an island. Was island the inhabited? अभी से उसको क्या लगा जब से इसने फुटप्रिंट देखा तो उसको लगा कि yes, the island was inhabited. People started living over there. The third one, footprint to someone this belonged. So ये फुटप्रिंट किसी और की है. This footprint belonged to someone. सो बेटा देखो इधर मैंने नंबरिंग दी थी. सो दिस फर्स्ट आप लिखेंगे सेकंड फुटप्रिंट, थर्ड बिलोंग्ड, फोर्थ टू, फिफ्थ समवन. फोर्थ वन, आई अराउंड मी लुक्ड. आई लुक्ड मी अराउंड, मैं ना वो अपने चारों तरफ देखा था. आई वेंट द टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज. I went towards the large footprint. Robinson जैसे ही ये footprint देखा था वो क्या किया था? I went towards the large footprint. ये बड़ा footprint देखने वो गया था. Was afraid. I was afraid noun में अभी डरा हुआ हूँ. ओके चिल्ड्रन, सो दिस यू हैव टू राइट दिस सेंटेंसेस प्रॉपरली. इस आप नंबरिंग मत दीजिए. यू हैव टू राइट देम एट द लाइन्स प्रोवाइडेड बिलो द सेंटेंस, बिलो द जम्बल्ड सेंटेंस. यू हैव टू राइट द आंसर. Now second one, fill in the blanks with the correct word.
few words were given and, but, because and so. So you are in class 5th and I know you know what are conjunctions. Conjunctions are joining words. We are going to join two separate sentences using a single word. एक single word use करके दो अलग अलग sentences को join करने को हम conjunctions, those particular words are known as conjunctions. And आपको पता है ये भी और ओ भी, बट मतलब पहले रीज़न रहेगा, आगे उसका पहले क्या हुआ वो रहेगा और आगे वो लिखा रहेगा, तो बट यूज़ करेंगे. बिकॉज मतलब क्योंकि कुछ हुआ तो वो क्यों हुआ उसकी रीज़न बताते हुए आगे सेंटेंस बढ़ेगी. सो मीन्स दैट्स वाई, इसीलिए. तो लेट अस सी द सेंटेंसेस. सेंटेंस रीड करिए, समझिए, देन आंसर करिए. आई वॉज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस. आई वॉज फ्राइटेंड, मैं तो डरा हुआ था, बट फिर भी मैं क्यूरियस भी हूँ. ईगर, क्यूरियस मीन्स ईगर इन ऑर्डर टू नो समथिंग, है ना. तो ये बहुत दो ही वॉज फ्राइटेंड, ही वॉज वेरी क्यूरियस. वो इतना डरा हुआ है तो भी वो क्यूरियस भी है. ही वॉन्ट्स टू नो वॉट हैपेंड. आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश. आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज. मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं बीच में जाऊंगा और देखूंगा, इसीलिए मैं आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज, इसीलिए मैं वाटर के एज से चलता हुआ गया हूँ. सो आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, में जाना चाह रहा था इसीलिए. सो मीन्स दैट्स वाई. सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज. आई रन एज फर्स्ट एज आई कुड डैश. आई वॉज फ्राइटेंड, मैं ना इतना फास्टली भागा था. क्यों भागा था? बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड, क्योंकि जैसा वो फुटप्रिंट देखा इसको डर लग गया, कोई सैवेजेस तो नहीं आ गए इधर, वो मुझे पकड़ के तो नहीं खा जाएंगे, इसी वजह से वो फास्टली रन किया. आई वॉज वेरी टायर्ड डैश कन्फ्यूज. मैं बहुत टायर्ड भी हूँ और कन्फ्यूज भी हूँ. वो टायर्ड भी हो गया और इवन कन्फ्यूज दोनों हैं. दैट्स वाई वी यूज़ एंड हियर. ओके बेटा, थोड़ा ऐसा नहीं टीचर ने लिख के दे दिया तो तुरंत ये करेंगे. गो थ्रू द वीडियो एंड ट्राई टू डू ऑन योर सेल्फ. राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स. अभी ये पूरा स्टोरी हमारा फुटप्रिंट के ऊपर ही बेसिस है. सो हियर यू हैव टू राइट ए स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, जो अलग फुटप्रिंट्स होते हैं, जो स्ट्रेंज होते हैं, जिसको आपने कभी देखा नहीं, कभी ऐसा फुटप्रिंट को आपने देखा ही नहीं. ऐसा स्ट्रेंज अनजानी फुटप्रिंट के बारे में आप क्या लिखोगी? तो एक छोटा सा पैराग्राफ आपको राइट डाउन करनी है. आई डिडंट राइट इट हियर बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक राइट, है ना. मैं आपसे लिखवाना चाहती हूँ. सो इधर आपको हिंट्स भी दे दिया बेटा, आप अच्छे से ट्राई कीजिए. एंड आफ्टर दैट आई विल शेयर माई वर्जन, है ना. मैं एक छोटा सा पैराग्राफ में शेयर करूँगी, बट आप खुद से कोशिश कीजिए. वेयर डू यू सी द फुटप्रिंट्स. पहले आप ये लिखिए कि आपको फुटप्रिंट्स दिखे कहाँ. व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे वाज इट, मतलब वो डे के किस टाइम पे आपने अर्ली मॉर्निंग देखा, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, किस टाइम पे. व्हाट सॉर्ट, किस तरीके की डे है. डिड यू सी देम एट नाइट, वो रात में तो नहीं देखा आपने. What happened when you followed the footprints. मान लीजिए आपने कोई स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स को देखा, तो आपने अगर उसको फॉलो किया तो आपने क्या फाइंड आउट किया है. What happened, क्या हुआ है जब आप वो फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे. तो और कुछ आपने देखा, आपको और कुछ देखने को मिला, या what did you see, उधर आपने क्या देखा. What happened then, मतलब वो फुटप्रिंट्स देखने के बाद आप कुछ रियलाइज़ किया कि वो किसके हैं. कोई एनिमल की, घोस्ट की, डेविल की, या कोई स्ट्रेंज पर्सन की, या आपने क्या. व्हाट हैपेंड देन, वो देखने के बाद एक कंक्लूशन में आने के बाद आपने क्या किया, या उधर आगे जाके और डरावना चीज़ें तो नहीं देखे और आप उधर से वापस फ्राइटेंड होके, स्कैर्ड होके भाग के तो नहीं आ गए हैं. ऐसा इस तरीके से सोच के देखो पैराग्राफ कैसा स्टार्ट करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट्स मेंशन करते हुए एक छोटी सी पैराग्राफ ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स के ऊपर आप लिखिए बेटा. ओके, नाउ टर्न योर पेज. Use the joining words given below and join the sentences in column A and B. So column A और B में अलग-अलग 2 separate sentences were given. So what you have to do is you have to join them
join the two separate sentences into a single sentence by using a conjunction. Few joining words. What are joining words? Nothing but conjunctions. So few conjunctions were given here, so you have to read them, you have to understand the sentences, and you have to use the correct joining word. और कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास चॉइस हो, दिस और दैट. एंड मतलब एक जैसा दो चीज़ें जब ऐड करना चाहते हो, देन एंड. सो मीन्स दैट्स वाई, इसीलिए मतलब कुछ हो गया है, उसके कारण आगे बताएंगे, तो देन यू हैव टू यूज़ सो. बट ये होना था, फिर भी हुआ ये था, ऐसा कुछ समझा नहीं है. बिकॉज मीन्स क्योंकि, हाँ उस दिन ऐसा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा हो गया. तो आपको सेंटेंस समझ के, दोनों सेंटेंसेस रीड करिए, समझ के कौन सा कंजंक्शन यूज़ करनी है. देखिए, I can sing well, she wore a raincoat, we may go to Shimla, he wanted a book for his birthday, he missed the school bus, I wrote the letter. B, I forgot to post it. तो तुरंत देखिए, I wrote the letter, लेटर लिखा और forgot किया पोस्ट करना, तो क्या लिखेंगे? I wrote the letter but I forgot to post it. मैंने लेटर तो लिख दिया, बट फिर भी मैंने उसको पोस्ट नहीं किया था. इट वॉज रेनिंग, तो रेनिंग के साथ मैच करने वाला वर्ड ए में शी वोर अ रेन कोट, तो उसने रेन कोट वियर किया. क्यों किया? बिकॉज इट वॉज रेनिंग. सो इस दोनों सेंटेंस को बिकॉज से ऐड जॉइन करनी है. वी मे गो टू शिमला, तो हम शिमला जा सकते हैं. और इधर वी मे गो टू दार्जिलिंग भी है, देखो ग्रुप बी में. सो वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग. सो दोनों के बीच में और ऐड करिए. नेक्स्ट, ही वॉज लेट टू स्कूल, वो ये लाइन छोड़ दिया हमने. तो वो लेट क्यों हुआ स्कूल? क्योंकि ही कुड हैव मिस्ड द स्कूल बस. ही मिस्ड द स्कूल बस, ही मिस्ड द स्कूल बस, सो ही वॉज लेट टू स्कूल. वो स्कूल बस मिस किया, इसीलिए वो लेट हो गया है. नेक्स्ट, और क्या रह गया बेटा? आई कैन सिंग वेल, सिंग के साथ क्या होता है? बट आई कांट डांस एट ऑल. यस, देखो मैं बहुत अच्छा गा तो सकती हूँ, बट मेरी से डांस नहीं करना नहीं होगा. मीन्स आई कांट डांस एट ऑल, मुझे डांस करना नहीं आती है. सो आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल. एंड वन मोर थिंग विच लेफ्ट, ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे. वो अपनी बर्थडे में एक बुक चाह रहा था. एंड अनदर मोर थिंग, ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे. उसकी बर्थडे में उसको बुक भी चाहिए थी और फुटबॉल भी. मीन्स ही वॉन्ट बोथ दीज. सो आप कैसे इसको ज्वाइन करेंगे? ही वॉन्टेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे. उसकी बर्थडे के लिए उसको एक बुक भी चाहिए था एंड एक फुटबॉल भी चाहिए. ओके बेटा, सो इस हिसाब से आपको अच्छा से अंडरस्टैंड करके विच टाइप ऑफ वर्ड वी हैव टू यूज़, थिंक अबाउट इट ट्वाइस, अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस, देन अप्लाई द जॉइनिंग वर्ड. ओके, नाउ फन टाइम. लुक एट द फुटप्रिंट शोन हियर. वी कैन सी अ स्ट्रेंज फुटप्रिंट हियर ऑल्सो. एंड हिंट दिया है कि ये किसका है. दिस इज़ द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून. यस, मून पे जो पहले इंसान जिसने मून पे अपना स्टेप रखा, उसका फुटप्रिंट है. एंड एवरी वन ऑफ नो हु ही इज़, इजंट इट चिल्ड्रन? हिज नेम वाज, उसका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. He was the first person who was the first person who landed on the moon. मून पे जो पहले इंसान है जिसने मून पे कदम रखा था. So definitely it should be the footprint of Neil Armstrong. Okay बेटा, so this is all about the exercises. So go through the video thoroughly and complete all the exercises in your book itself. and ये पैराग्राफ भी लिखिए. and next पेज में क्लू दिया है, पिरामिड कंस्ट्रक्ट करनी है, बहुत ईजी. फर्स्ट वन देखिए, 2 लेटर वर्ड बिगनिंग विद बी. बी से बिगन होने वाला कोई 2 लेटर वर्ड, बी बी. 3 लेटर वर्ड बिगनिंग विद कैप, कार लिखो, कैप लिखो. या सी से स्टार्ट होने वाला कोई भी 3 लेटर वर्ड, कार, कैप, कैट. अ 4 लेटर वर्ड विथ डी. डी से स्टार्ट होने वाला कोई 4 लेटर वर्ड, डॉल लिख सकते हो एंड डक लिख सकते हो. ऐसा आप सोचिए अपने हिसाब से, जो ये क्या सिर्फ एंजॉय करने के लिए ये पिरामिड बनानी है. अ 5 लेटर वर्ड बिगनिंग विथ ई. ई से कोई 5 लेटर वर्ड, EIGHT 8, EAGLE ईगल, ऐसा कुछ भी लिखिए. अ 6 लेटर वर्ड बिगनिंग विथ एफ. एफ से स्टार्ट होने वाला 6 लेटर वर्ड. फास्टर, FASTER. फेशियल, FACIAL. फेशियल, फास्टर. एंड और फैंसी तो 5 लेटर वर्ड है. और सोचिए, फार्म ने और
ऐसा कोई भी 6 लेटर वर्ड जो एफ से स्टार्ट होता है वो भी आप लिख सकते हो. ओके, सो इन दिस वे you have to complete this work of all the book exercises of this chapter. Thank you children.